आज हमारा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर्स। रेसिस्टर्स क्या होते हैं ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ए डिवाइस विच हैज गॉट रेसिस्टेंस। हमें कैसे पता होगा कि उसमें रेसिस्टेंस है? इफ यू अप्लाई पोटेंशियल डिफरेंस, सम करंट विल पास थ्रू इट एंड बोथ विल बी लिमिटेड, डेफिनेट। और जो भी हम अपने इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट करेंगे, V डिवाइडेड बाई I, this will give the value of resistance between the 2 points. So actual resistance की value यही होती है in any circuit between any 2 points. We mark resistor by this indicator, zigzag path. This is indication of resistor, and in our circuits we will write it as R. Now this R will be given by these 2 points. There is a potential difference V and the current flowing through this is I. So the value of R is V upon I. This is the only way to find resistance. और हमारे पास रेसिस्टेंस मेजर करने का दूसरा तरीका नहीं है कि हम उसमें कुछ काउंट कर लेंगे कि इतने ओम रेसिस्टेंस है। नहीं हो सकता। रेसिस्टेंस हमेशा कैसे पता लगाया जाता है? V अपॉन I से। ओके, दैट इज वन थिंग। बट ये हो सकता है कि मेरे पास ये एक एलिमेंट है जो कि रेसिस्टर है, क्योंकि इसमें मैं V लगाता हूं और इसमें एक लिमिटेड करंट फ्लो होती है, V अपॉन I करता हूं, कुछ वैल्यू आती है। ओके, इस तरह से बहुत सारे रेसिस्टर मेरे पास हो सकते हैं। तो मैंने उस पर लिख लिया क्या वैल्यू है। अब जहां भी मैं इसके दोनों तरफ कंडक्टर लगाऊंगा तो मैंने क्या किया? आई हैव क्रिएटेड सो मच रेसिस्टेंस इन दिस पाथ, in this circuit. That is how we create resistance in the circuit. Now between the 2 points I can create resistance not only with one resistor but with many resistors, and when I combine many resistors I will call it combination of resistors. So this combination of resistor, how do we combine more than one resistor, is again it is in the same way what we were doing with the capacitors, that is by parallel or by series method. So we will study today combination of resistors in parallel or in series. Once again, the important point is between 2 points. Between which 2 points resistors have been connected or the resistors are being counted. Okay, so here are the 2 points. Which are connected with a source of voltage. I can measure current here, put an ampere meter here, which will show me that current is I. Between these 2 points I put a voltmeter which will give me the reading of potential difference. Now here I can put 1, 2, 3 or many resistances. Let their value be R1, R2 and R3, different values, and many others. These are connected in such a way that any charge which is going from part A to point B, point A to point B, leave aside this thing. This is only for measurement of voltage. That is not the part of actual circuit. Okay, this is our actual circuit. In this circuit from A to B, if one charge wants to go, it has to pass through R1, then pass through R2, then pass through R3. It has to pass through all of them, so they will be known as in series. So series की definition क्या है? All those resistance through which charge has to pass through during flow of current, then they are in series. So this we will write down: combination in resistors
series combination. Combined one after other has to pass through each resistor R1, R2 and R3. तीनों में से उनको जाना पड़ेगा और तीनों को क्रॉस करने के लिए उसको वर्क करना पड़ेगा एंड द वर्क डन बाय ए चार्ज is work done by a unit charge between the 2 points is known as potential difference between those 2 points. तो यहां से एक यूनिट चार्ज गया, उसने यहां से यहां तक कुछ काम किया, वर्क किया, दैट वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स. लेट दिस पोटेंशियल डिफरेंस बी V1. फिर उसने यहां से यहां तक काम किया V2, फिर यहां से यहां तक काम किया V3 एंड इट हैज कम बैक. हाउ मच वर्क इट हैज डन? V1 V2 plus V3. V1 plus V2 plus V3 is the total work done. Now from here one charge has gone and it has come here after doing work. How much work it has done? इसकी भाषा में देखिए, in its language, this is a battery which has got potential difference V. What does it mean? A charge which is going from here and come back to this point. How much work per unit charge it has done? V. V potential difference का मतलब है एक चार्ज जाकर आएगा तो कितना काम करेगा? V. रेसिस्टेंस क्या बताता है कि यहां से एक चार्ज यहां गया, कुछ वर्क किया, हमने मान लिया कि वो वर्क V1 है, दूसरे का वर्क V2 है, तीसरे का वर्क V3 है. तो इनका आपस में क्या रिलेशन है? दिस इज द टोटल वर्क डन. दीज आर द 3 कंपोनेंट्स. सो द रिलेशन इज व्हाट? दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस. ये V पोटेंशियल कहां लगा हुआ है? देखिए, ये प्लस यहां और माइनस यहां, यानी A और B ये कंडक्टर है. We assume that across the conductor potential do not fall. कोई वर्क नहीं करना पड़ता है because it's a good conductor. It's not 100% correct, but we assume the work done is so small, so we estimate that if potential difference is V, here also potential difference is V because it must be good conductor. Okay, तो A से B तक का potential difference V है. That V is divided into V1, then V2, then V3 and the total is V. And this gives us a rule that potential difference is divided. ओके, अब इलेक्ट्रिक करंट को देखते हैं. यहां पर हमने एम्पियर मीटर लगाया एंड इट गिव्स सर्टेन करंट I. ये यहां से करंट I जा रही है. व्हाट दैट मीन? चार्जेस Q पर यूनिट टाइम. उस टाइम में इस सर्किट में Q चार्जेस मूव हो रहे हैं, तो यहां से यहां कितने चार्जेस जा रहे होंगे? ऐसे. The theory of continuity tells us कि अगर यहां से Q चार्ज जा रहा है तो यहां से भी Q जा रहा होगा, यहां से भी Q जा रहा है, यहां से भी Q जा रहा है, यहां से भी Q जा रहा है. अगर हर एक में से Q चार्जेस नहीं जा रहे हैं तो एक तरफ से Q गए और दूसरे से लेस देन Q निकले तो बाकी कहां जाएंगे? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस बाकी चार्जेस गायब नहीं हो सकते. इसलिए हमने क्या कंक्लूजन निकाला? दैट द चार्जेस पासिंग थ्रू वन पॉइंट
same as charges passing through the second, same charges passing through the third, because charges cannot be destroyed, they cannot be created. ना तो वो बढ़ सकते हैं ना कम हो सकते हैं. और अगर चार्जेस सेम है हर जगह पर, अगर चार्जेस सेम है तो करंट भी कैसी होगी? सेम. So here the current is I, here current is I, here also current is I, and how much is this I? The one which is going from here. Same charges. That means the main current going from the battery is the current passing through R1, through R2 and through R3. So this is current rule for series combination. Current I is same through all resistors in series. This is voltage and this is current. Now we have to find out how much is the resistance between A to B, और उसका नाम क्या होगा? Equivalent resistance. वो resistance क्या करेगा, कैसे मेजर करेंगे? तो हमारा आंसर है कि इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बिटवीन ए टू बी equivalent resistance between A and B is VAB. Now resistance, equivalent resistance between AB is R AB. This is equal to potential difference A to B divided by current flowing from A to B. The potential difference between the two measured by voltage and the current measured by I. This gives the equivalent resistance R. Now voltage from A to B we can write as, voltage from A to B is V1 plus V2 plus V3. So we write here V1 plus V2 plus V3, V1 plus V2 plus V3, और हर एक के अपॉन I, same denominator we put I. Okay, mathematics allow it, right? ऐसा किया जा सकता है. न्यूमरेटर के हमने पार्ट कर लिए and same common denominator this. Now how much is V1 upon I? See here. Yes, everywhere relation is for one resistance 1 is equal to V1 divided by I1. Here I1, I2, I3 are not different, all are I. So V1 upon I is R1, R2 and R3. So this is R1, R2 and R3. This is R A to B is R1 plus R2 plus R3, or R equivalent is this. So in series what happens to resistances? Answer, they are added together and their value increase. So resistance increase. In series resistance increase. How to find voltage across each resistance? अच्छा पहले ये ले लेते हैं, resistance increase R1 plus R2 plus, if there are n resistance, n resistances in series, कितने हो जाएंगे ये?
N into R, and resistances in series N multiplied by R. Simple. तो अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज करना है, कैसे कंबाइन करना है? सीरीज में, और जितने जितने ऐड करते जाएंगे उसका सिंपल एडिशन हो जाएगा, अरिथमेटिक एडिशन, और रेजिस्टेंस कभी निगेटिव होते नहीं, इसीलिए हमेशा पॉजिटिव एडिशन होगा। अच्छा, अब उसके बाद यहां से हमने V सप्लाई कर दिया है। V इज ए नोन क्वांटिटी, R1 इज ए नोन क्वांटिटी, R2 R3 आर नोन क्वांटिटीज। तो हमको कैलकुलेट क्या करने को बोला जाएगा कि यहां पर V1 की वैल्यू निकालो। V का कितना पोर्शन यहां पर लगा है, इसको हम कैसे निकालते हैं? तो आंसर है 2 स्टेप्स। नंबर 1, फाइंड आउट करंट, एंड देन find out V1, V2, V3, because V1 is equal to I into R1. Okay, so I will write 1 or 2 things here. Number 1, how to find this V, and equivalent resistance, you have got it. Current in circuit. करंट इन सर्किट कैसे मिलेगी? I इज इक्वल टू V अपॉन R, R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट किसके बराबर होता है? R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड वट एवर आर देयर। दिस इज करंट इन ए सीरीज। अब ये आप ओरल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक? सुनिए ध्यान से। This is 5 ohm, this is 2 ohm, this is 3 ohm, 5, 2, 3 ohm. How much is the total resistance? 10. This is 20 volt. How much is the current? Yes, 20 divided by 10 is equal to 2. How much is the current passing through this? 2 ampere, because the current is same. How is the current passing here? And how much is the current passing through 5 ohm? 2 ampere. Understand? Okay. फिर से, this is 20 volt, this is 5 ohm, 2 ohm, 3 ohm. How much is the I? अभी आपने मुझे बताया 20 upon 10 is equal to 2 ampere. How much is potential difference across this? 2 ampere multiplied by 5, 10 volt. यहाँ कितना? 4 volt. यहाँ कितना? 6 volt. 10 plus 4 plus 6. So 20 volt divide हो गया, 10 volt, 4 volt, 6 volt, 20 volt. हर चीज सेट हो गई। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। अब ये कैलकुलेशन में आपने किए, पर स्टेप्स क्या किए? सबसे पहले आपने क्या निकाला? I. उसके बाद आपने क्या कैलकुलेट किया? आपने कैलकुलेट किया कि V1 कैसे निकलेगा? R1। ऐसे ही V2 कैसे निकलेगा? I into R2, ठीक है? और R इक्विवेलेंट तो आपको पहले ही मालूम है, R1 प्लस R2 प्लस R3, उसी से आपने I निकाला, ठीक? इस तरह से V1, V2, V3 निकलते। दूसरा, एक चीज और हम इसमें याद रख सकते हैं, एंड दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी कॉमन, कि अगर दो रेसिस्टेंस R1 और R2 है, तो इसके अक्रॉस V1 और इसके अक्रॉस V2 है, तो V1 is equal to IR1 and V2 is equal to IR2, इनको डिवाइड कर दीजिए। So V1 upon V2 is equal to, इसका ये मतलब है कि जिसका रेसिस्टेंस बड़ा होगा उसके अक्रॉस वोल्टेज बड़ी होगी। लार्जर द रेसिस्टेंस, लार्जर इज द पोटेंशियल डिफरेंस। सो जस्ट बाय हैविंग ए व्यू ऑफ इट, सिर्फ एक बार देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि अगर ये 5 है और ये 2 है तो किसके अक्रॉस वोल्टेज ज्यादा होगी? 5, क्योंकि उसका रेसिस्टेंस ज्यादा है।
कितनी होगी वो तो I से हम कैलकुलेट करेंगे, I इंटू आर करके, लेकिन एक नजर देखने से आपको क्या पता लग जाएगा, किसके अक्रॉस ज्यादा किसके अक्रॉस कम। बाई चांस आपके कैलकुलेशन में यहां वोल्टेज कम आ गई और यहां ज्यादा आ गई, बी श्योर कि कहीं गलती हो गई है। ठीक है, तो हमारा रूल क्या है सीरीज में, ज्यादा रेसिस्टेंस ज्यादा वोल्टेज। क्यों? जितना बड़ा रेसिस्टेंस होगा उतना वर्क हमको करना पड़ेगा, एंड वर्क इज वोल्टेज। समझ आ गया? सो दीज आर द थिंग्स अबाउट सीरीज। ओके, सो ये हमने ए और बी के बीच का देखा। अब इन दो पॉइंट्स के बीच में एक दूसरी तरह से हम कनेक्शन कर सकते हैं, एंड दैट इज पैरेलल। So now we will study combination of resistors in parallel. This was series combination, and now we will do parallel combination. Parallel combination. Again, there are 2 points. We have connected battery here. This battery has got certain potential difference. V, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? V. Now दिस इज वन रेसिस्टेंस, इसके वन एंड को एक दूसरे रेसिस्टेंस के वन एंड से कनेक्ट किया। ऑल वन एंड ऑफ रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड कंबाइंड टुगेदर, द अदर एंड ऑफ रेसिस्टर्स आर कंबाइंड टुगेदर, दिस दिस दिस। सो दिस इज ए टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। इस कॉम्बिनेशन में यहां से जो करंट फ्लो हो रहा है, जो चार्जेस इसमें मूव कर रहे हैं, उस चार्जेस को देखिए, वो चार्ज यहां तक पहुंचते हैं ए में आने के बाद जो Q चार्जेस हैं, विल ऑल द चार्जेस पास थ्रू एनी वन और विल दे डिस्ट्रीब्यूट देम? दे विल डिस्ट्रीब्यूट वाई? देयर आर पैरेलल वेज। हम इसमें करंट में एग्जाम्पल सब वाटर से लेते, वाटर फ्लो से। तो अगर पानी यहां से फ्लो होके जाएगा और उसको 3 रास्ते मिलेंगे, तो वो तीनों में कुछ ना कुछ अपने को डिवाइड कर लेगा। सो वन थिंग इज श्योर, द चार्जेस आर, द फ्लोइंग चार्जेस आर डिवाइडेड, एंड द फ्लोइंग चार्जेस मीन्स व्हाट? करंट। सो द करंट इज डिवाइडेड। ओके, करंट का रूल बन गया, करंट इज डिवाइडेड। सपोज द चार्जेस कंजर्वेशन लॉ सेज कि यहां से जितनी करंट जाएगी, जितने चार्जेस जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। उनका कुछ पोर्शन इसमें से जाएगा, कुछ इसमें से, कुछ इसमें से। द सेम चार्जेस, द टोटल विल हैव टू बी सेम, और फिर वो सारे चार्जेस यहां कंबाइंड होके फिर इधर निकलेंगे। बिकॉज ऑफ कंजर्वेशन देयर विल बी नाइदर लॉस नॉर देयर विल बी गेन। इसका मतलब है कि अगर यहां से करंट I फ्लो हो रही है, तो उसमें से एक पोर्शन I1 इसमें से जाएगा, एक पोर्शन I2 इसमें जाएगा, एक पोर्शन I3 इसमें जाएगा, और यहां ऐसे जाकर, यहां से ऐसे आकर, यहां से ऐसे जाएगा, और फिर तीनों कंबाइन होकर जब निकलेंगे तो उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी? I, ड्यू टू कंजर्वेशन। तो यहां पर हमको मैथमेटिकल इक्वेशन क्या मिला? द मैथमेटिकल इक्वेशन सेज I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, नाउ this has got resistance R1, R2 and R3. Okay,
अब यहां से हमने पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया है। पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच लगता है। अब जरा ध्यान से देखिए, कंडक्टर कहां गया, ये कंडक्टर ऐसा गया और ये वाले पॉइंट को टच हुआ, ये यहां तक बिना रेजिस्टेंस के, यहां से ये ऐसा गया और इसको टच हुआ। अब ये दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V। फिर से मैंने आपको दिखाया कि यहां से ये ऐसा गया और ये पॉइंट को टच हुआ, R2 के वन एंड को, और ये दूसरा वाला भी R2 के दूसरे एंड को हुआ, इसलिए R2 के अक्रॉस पोटेंशियल कितना, V। अब यहां से फिर ये ऐसा गया और यहां टच हुआ, ये यहां से ऐसा गया और यहां टच हुआ, तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V। और बैटरी के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V। तो इसको ऑब्जर्व किया, हमने रूल बना लिया, द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर ऑल द रेसिस्टर्स इन पैरेलल एंड दिस पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम एज अप्लाइड बाय द बैटरी। तो ये कौन सा रूल बन गया, बैटरी का और ये करंट का। नाउ इक्विवेलेंट रेसिस्टर, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालने के लिए हमने इसको पहले लिया, क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, I। Between the points A and B, the total resistance is supposed to be R equivalent। अगर ये पूरे में यहां से यहां तक ये सब हमको नहीं दिखता, इस पूरे को हम क्या मानते हैं, R equivalent, then what will be our equation, V upon I, V upon I is equal to R, V upon I। तो I किसके बराबर हुआ ना, I is equal to V upon R, equivalent। This is value of I. So this I we can write as V upon RE। How much is I1 here? सब रिलेशन वैसा ही है, तो यहाँ I1 किसके बराबर होगा, V upon R1, and here value of V is same V, V upon R1, V upon R2, V upon R3, this। Now उसमें से V कॉमन निकालिए, इस V से कैंसिल करिए, so we got the relation one upon RE is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3। ओके, अगर दो होंगे तो 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2। सो दिस इक्विवेलेंट ये कितना होगा, तो आंसर होगा RE is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, और इसको इन्वर्ट कर देना है -1, तब जाके RE निकलेगा, इससे डायरेक्ट RE नहीं निकलता, इन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, अब इसको देखकर आप कैलकुलेट करके ट्रायल एंड एरर करके ये बता सकते हैं कि R इक्विवेलेंट R1 R2 R3 से बड़ा होगा कि छोटा होगा।
तो हमने करके देखा छोटा होगा। मान लो R1, R2, R3 तीनों 1, 1, 1 है, तो कैलकुलेट करो कितना हुआ। 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 इज 3/1 और 3/1 को इन्वर्स किया तो 1/3 विच इज लेस देन 1। तो फिर से अगर हमने एक रेसिस्टेंस लिया 1 ओम और एक रेसिस्टेंस लिया 1000 ओम, 1 and 1000 दोनों को हमने पैरेलल में कंबाइन किया, तो पैरेलल के बाद जो इक्विवेलेंट बनेगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, विल इट बी लेस देन 1000? ओके, क्या वो 1 से भी लेस होगा? वन और 1000 ये दोनों को हमने पैरेलल में कंबाइन किया, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना हुआ करके देख लेते। 1/1 प्लस 1/1000 इज इक्वल टू हाउ मच? 1000, 1/1000 और उसको इन्वर्ट कर दो 1000/1001 विच इज लेस देन 1। इसका ये मतलब है कि अगर हम कुछ रेसिस्टेंस को कंबाइन करते हैं, उसमें से जो सबसे छोटा रेसिस्टेंस है, कॉम्बिनेशन की वैल्यू उससे भी कम आएगी। जैसे एक है 1000, दूसरा 2000, तीसरा 3000। ये तीन को हमने कैसे जोड़ा? पैरेलल में, और उसके साथ एक चौथा जोड़ दिया 1 ओम। तो चारों की कॉम्बिनेशन की वैल्यू कैसी होगी? पक्का है लेस देन 1 ओम। सबसे छोटा कौन सा? 1, उससे भी छोटा। ठीक है, सो इस रूल को हम लोग लिख लेते हैं दैट वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑलवेज डिक्रीज एंड इट बिकम लेस देन द लीस्ट वैल्यू। In parallel combination, resistance decrease, the equivalent resistance is less than the smallest resistance. अब इसमें दो छोटे छोटे फॉर्मूले, और एक फॉर्मूला R1, R2 ये दो के लिए, for two resistances R1 and R2, R इक्विवेलेंट निकालिए और आप करेंगे और क्या निकलेगा? मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ द टू करके देख लीजिए। ठीक है, ये आपको ऑन थम्स याद कर लेना है, ये आपके फिंगर्स पे होना चाहिए हमेशा, because most of the times in our numericals we will be adding two resistances, so this is R equivalent. Then for n similar resistors in parallel, R equivalent कितना होगा? R डिवाइडेड बाई n। ये भी आप करके देखिए, यही आएगा। ओके, वी आर गिवन ए सर्किट। What is known by us is R1, R2, R3 and what is the potential we have applied. हमको पोटेंशियल मालूम है, हर एक का R मालूम है। दो चीजें हमको पता करनी होती हैं। नंबर 1, what is equivalent resistance of the circuit? This is the formula you can find out. Other thing, how current is distributed? What is distributed? Current. Voltage सबकी सेम है. How much current will pass through each resistor? This is our numerical and this is the most easy one. How? Each one has the voltage same. I1 is equal to how much? Yes. And this is a known quantity. इसी तरह से आप क्या निकाल लोगे? I2, इसी तरह से I3. तो आपको R1, R2, R3 तीनों का पता है. V कैसे लोगे? तीनों में सेम. और I कैसे लोगे? कैलकुलेट करके V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3.
ये वैसा ही है जैसा पिछले क्वेश्चन में आपने क्या निकाला था, वोल्टेज पहले करंट निकाली और फिर R1 into I, R1 into 2 ऐसे करके निकाला. सो दीज आर दी टू टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. फिर से मैं आपको एक बार याद दिला दूं, ये कौन सा है, पैरेलल. पैरेलल में करंट क्या होती है और वोल्टेज सेम, और सीरीज में करंट क्या होती है, सेम, और वोल्टेज डिवाइड. ये पॉइंट आपको याद रखना है पक्का. इसमें रेसिस्टेंस क्या होता है, इंक्रीज, और इसमें रेसिस्टेंस क्या होता है, डिक्रीज. कहीं लिखा हमने, यस, रेसिस्टेंस डिक्रीज. एन रेसिस्टर होने से ये कितना हो जाएगा पैरेलल में, R/N, और सीरीज में होने से N into R. ठीक, ये सारे फीचर आपने याद रखने हैं. सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है, तो आंसर है सीरीज में one end of the second end of the resistor is connected to the first end. इसमें सिंगल करंट सब में से जाएगी और वोल्टेज डिवाइड हो जाएगा. इसमें सिंगल वोल्टेज सब पर लगेगा, करंट डिवाइड हो जाएगी. ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया. सो दिस इज सीरीज एंड पैरेलल.